Hi everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here, and in today's video we're going to solve another problem. This problem is from the chapter of application of derivative, and in that too we are going to discuss some concepts about monotonicity and maxima minima. Okay, we are going to understand how the cubic nature of a function behaves, and through that we are going to solve this problem. So stay tuned for that, and do make sure to hit the like button. And before watching, you must also be able to understand how the concepts actually work. So for that आप लोग रिवीजन चेकलिस्ट की सीरीज को जरूर से रेफर करिएगा. That will be very beneficial for you in this particular time when your exams are nearing. So let's start with this video now. Okay, so in this problem it is particularly asked to we are supposed to find the real values, right? We are supposed to find the real values of lambda for which this has three distinct. ठीक है, distinct का कई लोगों को मीनिंग नहीं पता होता, तो distinct माने different. ठीक है, because language should be clear. Okay, that is the first and foremost thing, that language of a question should be very clear with you. Okay, so we are given an equation. You have to define some values of lambda for which this equation has three distinct, यानी कि three different roots, and what is that interval which contains lambda. Okay, so this is a multi-correct kind of question, and this is a very easy problem. So let us start with this. Okay, सबसे पहले हम एक क्यूबिक फंक्शन के नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेचर ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन. Okay, so cubics can be particularly of three types. I'll categorize them accordingly. First is the standard cubic, this format. Okay, another, this is a standard cubic which has three roots. Okay, another can be with having two roots, like just this. I mean, two solutions and three roots, because one root is repeated. Okay, and another kind of cubic जो हमारे पास हो सकती है, that is which has only one solution. Okay, only one real root. I am talking about real world. So these are the three possibilities that generally arise, and moreover, but we are actually sure that a cubic will have at least one solution. So a cubic must have at least one solution. Okay, real solution to be more exact. Okay, so this is the point that was to be cleared up, and let us start with this. On this note, let us try to understand how the things work in cubic equations. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबिक फंक्शन की बात करते हैं. एक स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन में हमें इन तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक क्यूबिक का कम से कम एक रूट होगा. I'll call root to be more exact. Let us try to understand how we are going to approach this problem now. Because हमारे पास एक function दिया गया है. We have been given a function f of x is equal to x cube plus x square minus x plus lambda is equal to 0. Okay, we have to, I mean, this is our function. We have to equate it. This equal to 0 must give me three solutions. Okay, so I have to check for f of x equal to 0. Whenever my f of x is equal to 0, this must imply that I have three solutions. Okay, and these three solutions are distinct. इसका मतलब मेरे पास तीन real solution होने चाहिए, यानी कि तीन रूट होने चाहिए. तो किसी भी क्यूबिक के तीन रूट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, इसको अब हम वापस से दोहराएंगे और समझेंगे. तो इसी किसी भी क्यूबिक के तीन सॉल्यूशन होने के लिए कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर तीन रूट बनेंगे तभी तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हम रोल्स थ्योरम देखें, ठीक है, या इनफैक्ट हम रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कभी ना कभी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से अगर मैं तीन रूट लिखूं, अल्फा बीटा एंड गामा, आई एम जस्ट यूजिंग दिस रोल्स थ्योरम काइंड ऑफ थिंग. आप लोगों को घबराना नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रिवियल. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके, एंड माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल अल्फा एंड बीटा, sorry, a closed interval alpha and beta, and differentiable in open interval.
in open interval alpha to beta. This is the standard conditions for Rolle's theorem. Okay, so I'm going to apply the Rolle's theorem. This is very simple, that this implies that there exists a C which belongs to the interval alpha to beta. This belongs to the open interval alpha to beta, such that f dash of C is equal to 0. This is one thing, okay? And we are going to apply it on a cubic. So we know that for a cubic to have 3 roots, so for a cubic has 3 roots. If a cubic has 3 roots, then considering any 2 roots, we are going to get a extrema. That this is condition for an extrema. Everyone knows it. Okay, there are certain conditions, of course, either maxima or minima. Also there can be a condition. यहाँ पर बीटा गामा में लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा कंडीशन मिलेगा. तो there will exist a C somewhere around here such that f dash C is 0, and similarly we are getting the same logic over here. Okay, so ये generally मतलब this comes from standard intuition, क्योंकि हम बचपन से ही बेसिक अलजेब्रा में देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल तक पढ़ते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बिहेव करता है वो सब पढ़ते हैं. इनफैक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी हम स्टैंडर्ड क्यूबिक्स को डील करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए रोल्स थ्योरम वाला पार्ट है ना, ये मतलब कुछ कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट यस इट इज वेरी सिंपल एंड इट एक्चुअली इज द स्टैंडर्ड प्रूफ टू हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क. Okay, that is the one thing that I wish to convey through this. Okay, so how can I use this to my advantage? So I know that my final answer should have 3 solutions, which means that I will have 3 points alpha, beta and gamma, such that function at these points, I'll just, okay, I'm just using this notation that this will be equal to 0. It is quite clear, it is quite obvious that यहाँ से हमारे पास अगर इनकी हम अल्फा डाले, बीटा डाले, गामा डाले, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है बीच में हमारे पास या तो एक मैक्सिमा आएगा या तो एक मिनिमा आएगा, ठीक है. बिकॉज हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ठीक है, और हमारे पास सेम पॉइंट है, तो देयर इज नो. अच्छा, यहाँ पर कई लोगों को डाउट होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों नहीं आएगा. तो बिल्कुल नहीं आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने के लिए हमारे पास कर्वेचर चेंज होती है, फंक्शन का वैल्यू सेम रहता है, तो वो किसी इंटरवल में आपके पास डिफाइन नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब में हम वो चीज देख सकते हैं, ठीक है. बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. वी आर जस्ट कीपिंग दिस थिंग्स वेरी सिंपल एंड वेरी टू द पॉइंट, कि यहाँ पर हमारे पास अगर 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, then I'm definitely sure that my f alpha and f of beta are going to be 0, and hence there exists some constant C in this interval such that f dash of C is 0, and for this to exist then it must be either a maxima or a minima. Okay, I'm just writing the things for the sake of completion and clarity. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इंटरवल में देखें तो इट बिकम्स अ मैक्सिमा, इस इंटरवल में देखें तो इट बिकम्स अ मिनिमा, एंड दिस इज बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट 3 रूट्स. ओके, माइंडेड दैट ये 3 रूट्स के लिए ही अप्लाई होगा, नहीं तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं, सिनेरियो बन सकते हैं, बट हम 3 रूट्स में डील कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन रही है, ठीक है. सो हमें 3 रूट्स के लिए देखना है, तो वी आर श्योर अबाउट वन थिंग कि यहाँ पर हमारे पास या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं अपनी वही वाली क्यूबिक पे आ जाते हैं, ठीक है. अब क्यूबिक पे आते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्यूबिक दिया गया है. चलिए इसके ऊपर हम वही लॉजिक अप्लाई करते हैं. लेट अस ट्राई टू, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारा अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो हम ऐसे कंडीशंस को इक्वेट करते हैं सच दैट हमारे पास एफ डैश 0 हो जाए, ठीक है. सो आई विल कंसीडर इट एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. So I'll consider now f dash of x. So what is my f dash of x? My f dash of x becomes 3x square plus 2x minus 1. Okay, when I equate it to 0, it becomes 3x square plus 3x minus 1 is equal to 0. Or 3x times of x plus 1 minus 1 times of x plus 1. This
becomes equal to 0, which means that x is equal to -1 or 1/3. क्लियर? तो x का वैल्यू या तो -1 होगा या 1/3 होगा, ठीक है? तो इसका मतलब अब हम देख लेते हैं, नंबर लाइन से इंट्यूशन ले सकते हैं कि यहाँ पर कहीं 1/3 आ रहा होगा और यहाँ पर कहीं -1 आ रहा होगा, ठीक है? मोर ओवर हमें क्या पता है कि इसका कोफिशिएंट है पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग क्यूबिक है। तो हमारा जो आइडिया एस्टिमेशन है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग नाउ। देखिए यहाँ पर हमारे पास ax³ + bx² + cx + d वाला पॉइंट भी मैं एक बार क्लियर आउट कर देता हूँ कि अगर a का पॉजिटिव होगा तो ये इस तरीका का क्यूबिक होगा, a का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो ये उल्टा चलेगा, मतलब ऐसा कुछ क्यूबिक होगा। तो दैट इज अ थिंग दैट आई विश टू क्लियर। सो हमारे पास ये है, तो हमारे पास इस टाइप का सिनेरियो बनेगा। तो वी आर गोइंग टू गेट अ एक्सट्रीमम पॉइंट एट दीज लोकेशंस। ओके, नाउ व्हाट डू आई नो, ठीक है, फॉर अ रूट टू एग्जिस्ट बिटवीन द टू, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पर मिनिमा आया और मुझे पता है कि ये क्यूबिक इंफिनिटी को जाएगा, जब इंफिनिटी पे है तो बीच में भी एक रूट आएगा, ठीक है? दिस फॉलोज फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यू कैन से इन दिस सेंस। और अगर हम सिंपली लॉजिक से भी देखें, इंट्यूशन से देखें कि कोई एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर ले लो, तो इंफिनिटी अगर जैसे हम मतलब 500 2000 कुछ भी ले लो, ठीक है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इनफ एंड हेंस इसकी वैल्यू भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी एफ ऑफ एक्स की। अगर हम इस वाले नंबर से छोटा नंबर ले लें, बहुत ही छोटा नंबर ले लें, तो दैट विल बी सम वेरी नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या है, f ऑफ -1 पे दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द रूट टू एग्जिस्ट, ठीक है? तो यहाँ वाली ये वाले दो रूट तो डेफिनेटली आने ही आने हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज अगर डिफरेंट है, ठीक है? अगर ये -1, क्योंकि -1 1/3 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा की कंडीशन हमारे पास आ रही है, ठीक है? और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस टाइप का सिचुएशन डेवलप हो रहा है, ठीक है? नाउ 3 रूट एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या कंडीशन पता होनी चाहिए? अब देखिए हमारे पास क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। x का वैल्यू -1 हम इधर ले लेते हैं और 1/3 इधर ले लेते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू जज वन थिंग। ओके, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके से आया कि हमारे पास ये ग्राफ ऐसा कुछ आया कि ये इधर से गया ही नहीं, और ये ऐसा कुछ मतलब जस्ट अ मिनट, लेट मी डू इट वंस मोर, ट्राई करते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है? लेट्स से ये 1/3 है और ये -1 है, ठीक है? अब ये सिनेरियो में तो हमारे पास रूट नहीं आया, तो आप बोलोगे कि भाई इस सिनेरियो में तो रूट नहीं आया, पर हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस आ रही थी और ये इक्वल भी नहीं थे। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि ये ऐसे आने चाहिए, अभी तो कंडीशन लगाई ही नहीं है कि लैम्डा निकले। तो कंडीशन लगाना, क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? ऐसे सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगा, ठीक है? सो f of 1/3 has to be negative for such a scenario, ठीक है? And similarly f of -1 has to be positive for this scenario, okay? In either scenario if हमारे पास f of 1/3 नेगेटिव आएगा और f of 1 पॉजिटिव आएगा, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक इंक्रीजिंग क्यूबिक है और इसके पास एक मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है? एक्सट्रीमम पॉइंट है, तो हमारे पास ये वाली दो कंडीशंस सफिशिएंट हो जाती हैं और इससे हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है आगे काम करना, ठीक है? आई होप इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो बता देना कमेंट में, बट अभी के लिए वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इतने सिनेरियो में दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ओके? तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कंडीशन आ गई है f of -1 अगर हम 0 से ग्रेटर देन पुट कर दें और f of 1/3 लेस देन 0 पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास f of x दिया गया है x³ + x² - x + लैम्डा, ठीक है? ये कंडीशन दिया गया है। f of -1 को अपन 0 पुट कर देंगे, ओके? सो लेट्स पुट f of -1, तो f of -1 को हम वी हैव टू पुट इट ग्रेटर देन 0, let us put it greater than 0, so this is -1 + 1 minus of -1 plus lambda, okay? So this becomes lambda + 1 greater than 0 or lambda is greater than -1,
ठीक है, एंड सिमिलरली एफ ऑफ 1/3 अपन लेस देन 0 पुट कर देंगे, तो दिस बिकम्स 1/27 प्लस 1/9 माइनस 1/3 प्लस लैम्डा। तो हम क्या कर सकते हैं, 27 एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 लैम्डा प्लस में, और यहाँ पर -9 3 एंड 1 314, सो दिस इज 27 लैम्डा, ठीक है, -5, ठीक है, अपॉन 27, दिस हैज टू बी लेस देन 0, और अवर लैम्डा, एक तो लैम्डा शुड बी लेस देन कितना, 5/27 आ जाएगा, और हमारे पास दूसरी कंडीशन है लैम्डा ग्रेटर देन -1, ठीक है, तो दो कंडीशंस को क्लब आउट कर देते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/27 से कम और -1 से ज्यादा, तो ये हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है लैम्डा के लिए, ठीक है, दिस इज अवर फाइनल इंटरवल। नाउ लेट अस चेक अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है, अब ऑप्शंस पे भी तो आना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बिना ऑप्शन के कैसे लग सकते हैं भाई, तो ऑप्शन में तो ऐसा कोई इंटरवल दिया ही नहीं है, तो हम क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे कि यहाँ पर लैम्डा है, 3 डिफरेंट रूट चाहिए, लाइज इन इंटरवल पूछा गया है, इसका मतलब हमें क्या पता है कि लैम्डा का जो हमने रेंज निकाला, ठीक है, जो था शायद -1 से 5/27, राइट, ओके, दिस मस्ट बी क्लोज्ड इंटरवल, ओके, तो दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, तो लैम्डा जब हम इस वैल्यूज को इन वैल्यूज को देखते हैं, ये है ना, हाँ सही है, यहाँ ये ऐसे आना चाहिए था, ओके, ऐसे आएंगे, बिकॉज हम इक्वल टू वाली कंडीशन भी तो देखेंगे, ठीक है, अब पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स भी तो हो सकते हैं कुछ ऐसे सिनेरियो में, तो हमें बेसिकली सबसेट देखना है, तो इट डजंट मैटर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -1 से 5/27 के बीच में किस किस इंटरवल में आ रहा है, तो -2 से 2, देखो अगर यहाँ पर 54/27 होता तब यहाँ पर 2 आता, तो ये 2 से तो डेफिनेटली छोटा है, और -1 ऑफ कोर्स -2 से बड़ा है, तो ए ऑप्शन मैचेस, ओके, व्हाट अबाउट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर देखें 1/27 या 5/27 देख लें, तो या फिर हम इसे ऐसा करते हैं, लोकेट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, -1 यहाँ 5/27, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ तो गलत हो गया, -1 से 0, अब यही नहीं है तो इससे छोटा वाला भी नहीं होगा, ठीक है, और -1 से हाफ, नाउ हाफ कब आता, जब यहाँ 13.5/27 होता, तो 5 इज लेस देन 13.5, फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स 5 इज लेस देन 13.5, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ कहीं आ रहा होगा हाफ, और -1 से हाफ के बीच में आया ना ये, तो ये अपना हो गया ना आंसर, तो इसीलिए डी ऑप्शन भी मैच कर गया, सो द करेक्ट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम वर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है, मैंने बहुत ही स्क्रैच से इस पूरे क्वेश्चन को करा, ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है, पर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है कि छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट भी अगर आपके दिमाग में हो तो वो क्लियर हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आई मीन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, और साथ साथ मतलब अगर कोई डाउट हो तो वो सारे एक्सप्रेस हो जाए, मैंने ये कंडीशंस इसीलिए लिखी ताकि आप लोगों को स्ट्राइक करे, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना, ठीक है, और बाकी इस वीडियो को अगर दिक्कत हो रही हो तो दोबारा देखना, धीरे धीरे करके देख लेना, पॉज कर करके देख लेना, और बाकी बढ़िया है भाई, ये वीडियो हो गया है तैयार हमारा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ you like this video, do make sure to comment and press the bell icon for latest updates, okay, subscribe to Entrance Investigation and have a great time, so thank you everyone and bye bye.